Okay, good morning to everyone present. I'm Himali Nelwal from NBQP Quality Council of India, welcoming all the participants to this webinar on the importance of digital presence for MSME. But before moving to this webinar, let me introduce you to QCI, Quality Council of India. Quality Council of India was established as an autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry with the vision of creating an ecosystem for quality. QCI is led by the dynamic leadership of our chairman, Mr. Adil Zainulbhai, and Secretary General, Dr. Ravi P. Singh. As an apex quality organization, QCI has 5 constitutional boards. National Accreditation Board for Certification Bodies, NABCB, National Accreditation Board for Education and Training, NABET, National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Providers, NABH, National Accreditation Board for Training and Calibration Laboratories, NABL, and National Board for Quality Promotion, NBQP. This webinar is also brought to you by NBQP. NBQP operates on the vision of building quality for national well-being. It endeavors to work towards this vision by promoting the application of quality management standards and statistical quality tools, enabling the industry to improve the quality competitiveness of industry in general and SME sector in particular, and also by empowering the consumer to demand quality and create pressure on suppliers to deliver the same. By initiating quality conclaves, quality awards, quality awareness programs, registration schemes, assessment projects, projects related to system improvements on QHSE, energy, etc. It sanitizes the manufacturing sector largely as well as its connected service sectors, thereby enabling the industries to improve quality competitiveness among SMEs. QCI also has special project divisions, including Project Planning and Implementation Division, PPID, which works with various union and state government ministries and departments. Broadly, the project under PPID can be categorized as policy support and implementation project. Project Analysis and Documentation Division, PADD. This division handles projects which aim towards the design, development, and implementation of voluntary conformity assessment frameworks for governmental, intergovernmental, regional, and global organizations. Zero Defect and Zero Effect Division, Z. The Z division leads various projects of national importance with a focus on Atmanirbhar Bharat. The division is involved in the flagship programs of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Tourism, Ministry of Defense, Ministry of Housing and Urban Affairs, and others. Our Training and Capacity Building Division, PCB Cell, conduct training and e-learning courses and capacity building programs. With all its constituent boards and divisions, QCI continuously leads its mission of a national-wide quality movement. Our today's webinar is a bid for the same. The webinar is about the importance of digital presence for MSMEs. Digital presence has become a necessity for every organization, and this has been realized during the pandemic. MSMEs are the backbone of any economy. However, they are still behind their larger counterparts in the integration of the digital tools that they need to grow and stay competitive. This webinar focuses on creating awareness on how MSMEs can bridge this digital divide. To learn more on this, we have with us Mr. Agranshu Dwivedi, who is an incubation manager, Jabalpur Incubation Center, project of Jabalpur Smart City Limited, Mentor MSME Madhya Pradesh, Mentor KLIC Incubation Center. He is a highly seasoned professional committed to go-getter with 11 plus years of experience working with IT startups, education industry, and non-profit organizations. Ability to handle multiple projects with high efficiency, incubation manager with demonstration history of setting up Jabalpur Smart City Startup Incubation Center
and taking the startup ecosystem to a next level in a short span of nearly 2 years. He is also registered startup mentor with the Ministry of MSME, Madhya Pradesh, and I'm certain that you will be beneficial from his knowledge today. Before we move on to webinar, I would like to announce that all the questions will be considered at the end of the session. You may type your questions in the chat box, and these will be discussed during the Q&A session. So with this, I welcome Mr. Dwivedi. Over to you, sir. Okay, thank you so much, Himali. I hope, am I audible now? Yes, sir. Yeah, thank you so much, Himali, for this kind gesture, for giving the introduction, for the welcome, and definitely the today's session is gonna be very important with all, because see, being from a tier 2 city, from a city where we are a budding smart city, a budding startup ecosystem in Madhya Pradesh, we have always dealt with the startups who are right now in a phase where they are actually like SMEs only, and mostly we have dealt with the SMEs, we have worked with them. So I have always dealt with the practical problems they are facing, and also we have tried to find out the best possible solutions, that working with the authorities for such a longer period of time, we have always tried to give our best to the SMEs so that they can actually be nurtured. In today's presentation, I'll be going through a presentation where I'll be covering what all are the prospects that SMEs will have once they are getting entered into this digital world, and what is the firstly, what is the need of getting digital, and then up till date how many SMEs they have actually what is the core sector, the total contribution that SMEs have done in getting digitalized, the government's vision when they came up with this digitalization concept for the SMEs, how it has actually helped to expand their reach, and what all to be done till date, whatever has been done till date, and what all we need to do in the future to actually help them out. I have come up with a lot of figure facts and figures which SMEs should know, and I'll also be discussing few points. I'm going to take it in bilingual, because I want the SMEs, because most of them language has always been a barrier for the people. So I'll be taking it in Hindi also, some part of it, so that the once if this seminar goes to all community of the people, they should be able to understand this as being the widely spoken language, that how actually SMEs can be benefited with getting digitalized, what all the platforms and tools they need to know, and how they can enter into this digital world, and that can definitely help them out to expand their reach to the customers, to expand their to increase their revenues. Everything we'll try and discuss in details today. So I'll be sharing my presentation now. Just one second. Is the presentation visible? Conference पे डाल दूँ उसको? No, not yet. Just one second. मैं conference पे डाल देती हूँ इसको ना. Just one second. It's visible now. Yeah. Okay. I'll start now. As we already know, it's our today's agenda is to help SMEs, MSMEs understand the importance of digital presence and the key digital tools that they can have. I have already been introduced by Himali, so we'll move further to this. This was something that when we were actually starting off with this seminar, we were trying to focus on. This is something very important that actually we were looking forward at. The digital presence has really become a necessity for every organization. When we talk about organizations,
when we have already categorized them into small, micro, and medium organizations, it is really, when this pandemic time has actually taught everyone how to deal, it has taken the MSMEs and SMEs to a next level. The calamity has actually helped out these startups when there was nothing left with them, how to reach out to their customers, actually how to provide service to them, how to earn for their bread and butter. So that was the time, this digitalization. And already the government being so much futuristic when in 2016 this digital thing started, when the process of digitalization started, when Jan Dhan Yojana and everything came into existence, when actually the bank accounts were open for every kind of people, for minorities, and when almost it was made compulsory for everyone to have a bank account. So that time, this process of digitalization started, and we never thought about in 2020 somewhere we are going to face such kind of a situation where we'll actually be so much benefited by this. And today the era has completely changed. As you all can see, the digitalization has helped us. Previously we used to have only around 14 unicorns who were there in the next 3 years. As you can see, now we have 84 plus unicorns that have already been as startups who have turned up into unicorns. The companies in just 3 years have become billion-dollar companies. So digitalization, it has all been because of that much advent and that much getting into the digitalized world. Now today I'll be discussing more on the MSMEs and SMEs part. I'll also be giving a brief on how actually it will be like a flashback how SMEs, MSMEs are categorized, and why this, why we are more focusing on this. Definitely, as Himali also told you, told everyone, SMEs are definitely the backbone of any economy. But they always remain being undertreated because of not adopting to the technologies, being keeping themselves away from it. ये अक्सर हो जाता है MSMEs के साथ, SMEs के साथ, जो छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन उनमें नहीं होता है। लोग बहुत अच्छे बिजनेसेस चल रहे थे उनके, बट व्हाट दे हैव डन, वो दे हैव बीन डूइंग देयर बिजनेस, दे हैव बीन डूइंग देयर फैमिली बिजनेसेस। बट होता ये है कि किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करना, वो अपने आप को थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करते हैं। दे हैव बीन फीलिंग reluctant to actually adopt to the technologies. उन्हें लगता है कि शायद हम अगर कोई नया चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दे लूज देयर कस्टमर्स जो शायद उनके बने हुए हैं। तो अपने बिजनेस में किसी तरीके का जो है नयापन नहीं ला पाना, नॉट एडिंग न्यू वैल्यूज टू योर बिजनेसेस, हैव ऑलरेडी अफेक्टेड आर MSMEs आर SMEs। हम अभी एक फिगर्स पर जाएंगे आगे तो वील कम टू नो कि व्हाई स्टिल जो हमारे साथ है, हमारे पास स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस ज्यादा हैं आज भी, जबकि हम उसके हम दिस इज समथिंग दैट वी ऑल वांटेड टू सी कि हमारे पास जो है मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस ज्यादा होने चाहिए, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि अगर इफ दे उनकी जब नंबर्स बढ़ेंगे, उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लार्जर एंटरप्राइजेस होंगे, ज्यादा लोगों को सर्व कर पाएंगे, ज्यादा जो है वो रेवेन्यूज जनरेट कर पाएंगे, ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से उनका जो एक ओवरऑल है कि वो अगर उनका वो दायरा बढ़ता है तो उनका वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू टू बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए जो है अगर MSMEs हैं, हमको उनको एक बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए होता है। दिस इज समथिंग वी ऑलवेज से, एक अच्छी सलाह से एक अच्छा सपोर्ट ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर जरूरत है बहुत ज्यादा कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग एट हिज लेवल बेस्ट कि वो MSMEs को, SMEs को, सबको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके। और
एट द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो फ्रॉम हर तरह के, हर गवर्नमेंट लेवल पर एक ज्यादा बेटर हैंड होल्डिंग की इस समय जरूरत है एमएसएमईज को, एसएमईज को। और जितना ज्यादा उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली उनका ग्रोथ उतना अच्छा होगा। और इस सपोर्ट में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि वो है डिजिटलाइजेशन का। अभी इफ वी टॉक अबाउट, बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स थे जो पहले डिजिटल से काफी दूर रहते थे। हमने भी शायद अभी 2016 तक, जब तक उसको एज अ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, पीपल यूज टू कीप अवे फ्रॉम, जो खासकर छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, दे हैव ऑलवेज बीन रिलक्टेंट, और कि वो डिजिटलाइजेशन से थोड़ा सा दूर रहते थे। बैंक्स में अपना पैसा रखने की बजाय दे हैव बीन होल्डिंग दैट मनी विद देम। तो वो सब चीजें जो थी, जैसे ही चेंजेस आए हैं, उससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस समय क्रिएट हुआ है। काफी ऐसे फिगर्स हैं जो मैं अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कि जिससे ये पता चल सकेगा कि वाकई में हमको कितनी जरूरत है इस डिजिटलाइजेशन की, और एमएसएमईज को बहुत ज्यादा चाहिए। कि देखिए, इसमें दो चीजें देखी जाएंगी। वील बी फोकसिंग ऑन टू थिंग। फर्स्ट इज कि एमएसएमईज को दो बड़ा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। फर्स्ट इज कि वो अपना पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब डील कर रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, तो क्योंकि मनी इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, तो उसका फ्लो जो है वो डिजिटलाइजेशन से बेटर हो जाता है। कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए आई विल बी गिविंग एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बिकॉज सी वी हैव बीन डीलिंग मोर ऑफ विद द एसएमईज ओनली। तो उस पे ज्यादा फोकस रहा है कि कैसे छोटे छोटे से जो खुदरा व्यापार करने वाले जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों को कैसे डिजिटलाइजेशन, उनको हमने यूपीआई जब क्रिएट कराए, तो उनको जो उनके बिजनेस है उसमें बहुत सपोर्ट मिला है। ये सारी कुछ जो स्टडीज हैं पब्लिश हुई हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एक्सप्रेस, सारे ऐसी जगहों पर, इकोनॉमिक टाइम्स में, वहां पर जो है काफी इस तरह की स्टडीज अवेलेबल हैं जो बता रही हैं कि हमको इस तरह डिजिटलाइजेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। तो ये एक, इसको अगर हम एज एन अवेयरनेस अभी अगर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू अवेयर एमएसएमईज, एसएमईज मोर अबाउट कि ये चीजें हो रही हैं, जो अभी उस परसेंटेज में नहीं है जो यूज करे थे। बिकॉज इन नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली आई विल बी टेलिंग कि पहले एमएसएमईज और एसएमईज जो भी आज इसको अटेंड कर रहे हैं, जो लोग, एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर डू आई लाई। अभी हमें दो पार्टीशंस दिख जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरगो टू काइंड्स ऑफ पार्टीशन, कि यार मैं वेदर आई लाई इन दिस कैटेगरी और आई लाई इन दैट कैटेगरी। तो ये दो कैटेगरीज आप देखिए इस समय है, कि जो हमारा इंडियन एमएसएमई इंडस्ट्री का रिपोर्ट है, नवंबर 2021 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें इसने कहा था कि रैपिडली अडॉप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स ओवर कैश विद 72% एमएसएमईज जो हैं, उन्होंने अपने पेमेंट्स जो हैं वो कैश की जगह डिजिटल पेमेंट्स रिसीव किए हुए हैं, एंड 28% जो है वो कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो हमारे पास इस समय बहुत बड़ा एक मतलब यहाँ पर फैक्टर आ जाता है फॉर सेमीज, कि उनको दिस इज द टाइम फॉर देम, ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वेबिनार, और इसके अलावा भी जब भी अगर वो सुनते हैं या इस बारे में सोचते हैं, तो हम इस दो कैटेगरी में से, वेदर आई लाई इन द कैटेगरी ऑफ 72% जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इट इज ऑलरेडी अ ह्यूज नंबर। 72% अपने आप में एक बड़ा फिगर है, कि जहां एमएसएमईज ने और एसएमईज ने अपने आप में मैक्सिमम पेमेंट्स जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू रिसीव किए हुए हैं। 28% ही ऐसे हैं जो कैश हुए हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो आज भी अगर कैश पर ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आगे हम स्लाइड्स में देखें किस तरह से उनको इफेक्ट पड़ा है। और क्योंकि आप एक नॉर्मल अगर कंज्यूमर की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट अ वेरी नॉर्मल कंज्यूमर, तो पीपल हैव बीन रिलक्टेंट अबाउट these cash transactions, खासकर especially during this pandemic times, when when anything can be transmitted
थ्रू एक्सचेंज, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग फिजिकली। तो वो फिजिकल एक्सचेंज से लोग पैसा दे रहे हैं, तो वो ऐसा लगता था कि शायद हमने जो करेंसी नोट्स शेयर किए उसके साथ भी वायरस आ सकता है। और तो उसने एक तरीके का जो था फिजिकल ट्रांजैक्शंस को काफी यहाँ पर जो था रिस्ट्रिक्ट हुए, और डिजिटल पेमेंट्स जो थे, डिजिटल पेमेंट्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली ये डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, ये डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। तो 72% ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो डिजिटल हुए हैं। और डिजिटल ट्रांजेक्शन से सबसे अच्छी चीज ये रही, होता ये है नॉर्मली फॉर दोज पीपल जिनके लिए पहले ये होता था कि देव बीन कीपिंग कैश, वो कैश जो था कैश बर्न उनका ज्यादा जल्दी हुआ करता था। जब इस तरह से डिजिटली आ जाते हैं तो मनी इज ऑलवेज जब बैंक्स में आता है तो वो ज्यादा अपने आप को एक सेफर साइड में पहुंच सकता है। फिर उस पे ट्रांजैक्शंस का हमेशा रिकॉर्ड्स रहते हैं कि क्या हमारे ट्रांजैक्शंस किस तरह से हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं डिजिटलाइजेशन के साथ हुई हैं। तो पहले अपने आप को यहाँ पर जो हमारे एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, उनको थोड़ा सा एक अपने आप को देखना पड़ेगा कि यार अगर 72% लोग किसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं तो मीन्स इट हैज टू बी अडॉप्टेड, उसका एक फ्यूचर अच्छा है। तो हम 28% वाली कैटेगरी में ना रहें, हम ये 72% वाली कैटेगरी में पहुंचे। एक छोटा सा ओवरव्यू देख रहे हैं कि अभी आज का जो डेट है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो 6.3 करोड़ एसएमई एमएसएमईज हमारे साथ जो हैं हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। आप जहां पर देख सकते हैं कि नियरली 5 करोड़ 76 लाख एंड 7,734 एमएसएमईज जो हैं, जिसमें से आप देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है 94.34% जो है वो माइक्रो का है। और इसके बाद जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस का आप देखेंगे 5.09% है। और जो जिन्हें मिड साइज मीडियम एंटरप्राइजेस जो हम कहते हैं वो सिर्फ 0.57% है। अब as we already knew and we have already discussed in this कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ये अराउंड 29% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप वहां पर देखिए कि द मैक्सिमम हैज बीन इन टर्म्स द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, जो यहाँ पर आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ सामने रखे हुए हैं, 94% जो है अभी भी माइक्रो की कैटेगरी में आ रहे हैं। माइक्रो की ये कैटेगरी वाइज भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आई जस्ट ट्राई एंड कुछ लोग शायद वो रिवाइज भी हो जाता है एक चीजें, और आपको वो फैक्ट्स फिर से सामने रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में कि क्यों कोई माइक्रो की कैटेगरी में आ रहा है, व्हाई समबडी कमिंग इनटू द स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में, क्यों कोई मिड साइज की में आ रहा है। और इस समय ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि माइक्रो से निकाल करके जो है स्मॉल एंटरप्राइज और मिड साइज एंटरप्राइज में, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं उनके टर्नओवर से रिलेटेड हैं। when everything is related to the turnover, तो हमें इस परसेंटेज को जो है बढ़ाना होगा, जहां पर स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है ज्यादा परसेंटेज में हो, मिड साइज और ज्यादा परसेंटेज में हो, देन ओनली जो है लोगों का खुद का भी जीवन अच्छा होगा और देयर लाइफ, उनका जब रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो उनके रेवेन्यूज बढ़ने से उनको खुद के लिए और सोसाइटी के लिए दे कैन बी एबल टू डू समथिंग वेरी गुड। और इंडिया की जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करने के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक विजन है, उस तक पहुंचने के लिए हमको ये ट्रांजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि माइक्रो से निकाल करके हम समवेयर उनको स्मॉल और फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस से उनको मिड साइज एंटरप्राइजेस की ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज को हम बढ़ाएं। ये एक जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल का हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो है 5 करोड़ है तक का है, फिर 50 करोड़ 250 करोड़ इस तरह के जो उनके टर्नओवर हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं दोनों साइड को, चाहे सर्विस सेक्टर का हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इस तरह से डेफिनेटली ये आई थिंक सो कि ये सभी को ये चीजें डेफिनेटली होंगी। बट स्टिल आप देखिए कि हमको जब माइक्रो में हमें जो 5 करोड़ के टर्नओवर तक वाले लोग हैं उनको उस टर्नओवर को 5 करोड़ से बढ़ाना होगा, उसको 50 करोड़ तक लाना होगा, और 50 करोड़ वाले को 250 करोड़ और उससे ऊपर लेके जाना होगा। जब ये इफ दिस परसेंटेज इज गोइंग टू इंक्रीज देन ओनली देयर विल बी अ बूस्ट इन द इकोनॉमी। तो ये चीजें होंगी कैसे? अभी why has been so much importance given to the startups? उसका रीजन यही रहा है
कि वो अपने साथ एक स्केलेबिलिटी लाए हैं। ये स्केलेबिलिटी अभी भी यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिसिंग रहा है। जिनके साथ स्केलेबिलिटी रही है उनकी फंडिंग ज्यादा हुई है, उनको उनके खुद के टर्नओवर्स आज दिख रहे हैं, और इसीलिए जो है वो इकोनॉमी को ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशंस पर वर्क करना होगा, और ये चीजें जो है ये डिजिटलाइजेशन इसमें सपोर्ट करेगा, और इसको आगे ले जाने के लिए सिर्फ इसी के थ्रू हो सकता है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, इन लास्ट वेबिनार ऑल्सो हम यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि जेम के बारे में, कि भाई जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इन सारी चीजों के बारे में, चाहे वो जिस तरह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहाँ पर एक्चुअली जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, दे हैव बीन गिविंग, उनके लिए एक पॉइंट मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है गवर्नमेंट की, देयर प्रोडक्ट्स कैन डायरेक्टली बी प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनको टेंडर्स वहां से ले सकें, वो जो है एक फेयर इनफ प्रक्रिया वहां पर हो सके जहां पर दे कैन एक्चुअली अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। और डेफिनेटली ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। तो जिस तरह देखिए ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिजिटलाइजेशन, कि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल दिया जहां पर आज जो है लाखों अभी एसएमईज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और जितना भी इस तरीके जो भी एमएसएमई सेक्टर में आते हैं वो लोग यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं। दे हैव बीन कंटिन्यूअसली बेनिफिटेड बाय द गवर्नमेंट। जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खासकर काफी बेनिफिट हो रहे हैं, उनके अगर कुछ इनोवेटिव उनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको गवर्नमेंट जो है वहां से परचेज कर रही है। तो जो उनको एक हमेशा रहता था कि क्या मेरे प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी व्हेनेवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू परचेज दे विल बी परचेजिंग इट इन वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम्स अच्छे मिल सकते हैं। वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि there has been a portal, an electronic portal, a digital portal like this that has helped them out, है ना, to give a platform to the MSMEs, to the SMEs, जहां से उनके ये प्रोडक्ट्स खरीदे जा सके। अब एक और ये जो मैं आपसे विच एक्चुअली आई एम शेयरिंग विथ यू, कि क्यों हमें ये वी हैव बीन ट्राइंग, अभी इस सेगमेंट में आई हैव बीन ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्चुअली टीच, टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डिजिटल, गोइंग डिजिटल। एमएसएमईज को, एसएमईज को ये समझना पड़ेगा कि आपको डिजिटल होने से ये वो फायदे हैं जो हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली मैं वो स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो डेटा शेयर कर रहा हूँ कि कंपटीशन इतना इतना टफ हो चुका है, जहां लोग ऑलरेडी एक बड़ा परसेंटेज जो है वो डिजिटल की तरफ ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है। डिजिटल में दोनों चीजें आ रही हैं, वो अपने पेमेंट्स लेने के जो मोड हैं उसको उन्होंने डिजिटल किया हुआ है, और दूसरी तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी डिजिटल प्रेजेंस जो है वो बना करके अपने कस्टमर से ज्यादा कनेक्टिविटी बनाई हुई है। जब कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी के कारण उनके सेल्स बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं। ये रिसेंट का ही जो हमारा 30 दिसंबर 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल शेयर हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विल ग्रो थ्रीफोल्ड टू अबाउट 1 ट्रिलियन बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026। अगर हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रहे हैं तो ये एक हमारे दीज आर ऑल वेरी गुड साइंस कि हम जब देख रहे हैं कि हमारे आने वाले जो अभी 4 साल में 2026 तक का ये अनुमान लगाया गया है कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स है, हमारे पेमेंट्स करने का जो तरीका है वो टोटली बदल जाएगा। जब डिजिटल पेमेंट्स होंगे तो वो उसको एक्सपेक्ट किया गया है कि 1 ट्रिलियन के अराउंड जो है हमारे पेमेंट्स टोटल वहां पर होने लगेंगे। तो डेफिनेटली जो हमारे सारे सेक्टर्स हैं वो सब अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विल ग्रो 3 folds by financial year 2026 compared to $300 billion in 2021। आज जिस चीज का अभी जो है ये 300 बिलियन है, और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन तक हो जाएगा।
गवर्नमेंट ने हमारे आधार कार्ड, हमारे मोबाइल्स को जो डायरेक्टली कनेक्ट करा हमारे बैंक अकाउंट से, एंड डेफिनेटली पैंडेमिक में तो एक दूसरे तरीके से ही डिजिटलाइजेशन ने हमारी मदद की है. वी हैव बीन अमंग द कंट्रीज, वो कंट्री बने जिसने पूरा कंप्लीट, जो 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है वो तक डिजिटल हुआ है हमारे यहाँ. उसके सर्टिफिकेट्स, उसका जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब कुछ डिजिटल मिले हैं. और सबसे अच्छी चीज यही है कि इस डिजिटलाइजेशन का, दिस इज अ टोटली एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन. इसीलिए जो हमारे एसएमईज हैं उनको ये समझना होगा कि इफ अगर आपको पेस बना के चलना है दूसरों के साथ, आपको बराबरी पे आके खड़े होना है, तो आपको डिजिटल को अडॉप्ट करना ही होगा. देयर इज नो अदर वे. अभी भी जो 28% भी हमारे यहाँ, क्योंकि इट्स अ ह्यूज नंबर इन इंडिया, क्योंकि हम कुछ भी बात करते हैं तो हमें अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना होगा. वी आर रीचिंग टू अराउंड 150 करोड़. तो जहां 150 करोड़ लोगों में हम देखते हैं कि जो हमारे अगर एसएमईज, हमारे करोड़ों एसएमईज हैं वहां पर, और उसमें 30% इज स्टिल अ ह्यूज नंबर जो अभी भी ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश में कर रहे हैं. तो डेफिनेटली उनको जो है उस चीजों को चेंज करना होगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना होगा, अगर इफ यू वांट टू बी इन द कंपटीशन. क्योंकि जो कंपटीशन से पेस नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो बहुत जल्द ही उनके बाहर निकलने का समय हो जाएगा. ये नेक्स्ट स्लाइड है. ये मैं इसी जो आर्टिकल है इसी से शेयर कर रहा हूं आपको, क्योंकि दीज आर एक रिकॉग्नाइज्ड सोर्स से हैं कि देखिए हम वी हैव बीन अमंग द टॉप कंट्रीज, है ना. जो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें वाकई में पूरे विश्व में इस समय सबसे आगे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव बीन डूइंग ऑलरेडी. ऑल्दो सी हम इतना बड़ा कंट्री है हमारा, और डेफिनेटली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, बट आप यू विल सी कि जो छोटे छोटे भी ट्रांजैक्शंस होते थे, आज जो है डिजिटल पेमेंट्स मोड जो है एक नेसेसिटी बन गया. कि जो बहुत ही छोटा व्यापार करने वाले, इवन जो फ्रूट सेलर्स हैं, जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड वाले हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, चाहे वो हो, उन सभी ने डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट किया. उन्होंने चीजों को देखा कि नॉर्मली ये होता है कि कस्टमर हैज बीन रिलक्टेंट टू कैरी कैश. इट बिकम्स, खासकर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, वी हैव ऑल सीन कि किस तरह से दे हैव बीन विद लॉन्ग क्यूज in front of the ATMs to withdraw cash. और this is something that people eventually felt कि यार some way अगर जब इस तरीके का कोई स्टेप लिया जाता है तो इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप. कि आपको अब आपको ये तरीकों से बाहर निकलना है. यू एक्चुअली हैव टू कम आउट ऑफ द कैश. और ऑलरेडी अभी सब लोग देख ही रहे होंगे कि द कैश कैश जो है वो सबसे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस जितने होते हैं उनका हिसाब रखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है. वो खासकर ऐसी ही वो चीजें हैं जो टैक्स टैक्स की चोरी में और सब में खासकर सबसे ज्यादा उसका यूज किया जाता है. तो अगर जब तक टैक्सेस नहीं आएंगे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट कैसे अच्छी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करेगी. तो डेफिनेटली उस सब के लिए जो है कहीं ना कहीं जो पूरा इकोनॉमी है उसको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो मूव करने का एक विजन लेके चल रहे हैं, तो वो चीजें तभी साकार हो पाएंगी कि व्हेन एवरीवन इज एक्चुअली अडॉप्टिंग इट. डू जब इससे लोगों को खुद भी फायदा हो रहा है. The biggest and the most important thing has been people has been adopting this digitalization. अगर आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा सेगमेंट जो है वो डिजिटल पेमेंट्स से रिसीव हुआ है, मतलब इसका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट हुआ है. And only when others have been benefited, that's why actually they are adopting it. तो बेसिकली ये सब कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाने का, और बिकॉज आई हैव आल्सो बीन शोइंग इट टू माय स्टार्टअप्स आउट हियर. एंड जब हम एमएसएमईज का हम मीटिंग लेते हैं रिसेंटली, अभी जो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, तो उसमें हमने अराउंड 1000 इन जबलपुर स्मार्ट सिटीज इंक्यूबेशन सेंटर हमने एक कैंप लगाया था, जहां पर भी एक्चुअली इनवाइटेड अराउंड thousands of street food vendors from all over the district to actually come up to us, and there we help them out to
उनका QR कोड जनरेट कराने, उनको UPI पेमेंट्स से जोड़ने का काम किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि इनका बहुत ये एसेंशियल है। अगर हम जितने भी हम स्मॉल बिजनेस, जो हमारा माइक्रो कम्युनिटी का जो एंटरप्राइजेस हैं, जब तक हम उनको इनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक बार अभी आज वो डिजिटल पेमेंट से कनेक्ट हुए, फिर उन्होंने जब देखा कि हमने वी आल्सो कंडक्टेड सेमिनार्स ऑन कि हाउ दे कैन एक्चुअली कनेक्ट देमसेल्फ। जो फूड वेंडर्स थे, तो उनको जो करेंटली रनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्राउड इस समय एंगेज्ड है, वो चाहे स्विगी है, जोमेटो है, इस तरीके के, तो वो फूड वेंडर्स को उनसे भी कनेक्ट कराया। जो ग्रोसरीज वाले थे उनको डिफरेंट हमने जो ग्रोसरीज के जो लोकली अवेलेबल हैं उनसे कनेक्ट कराया। क्योंकि we always this is something to be remembered कि यही वो चीजें हैं which can actually help them to improve their economic condition। उनके जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, जब तक उनकी चीजों को लोग खरीदेंगे नहीं, तब तक जो है उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि वी हैव टू एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग दैट हैज टू बी डन, बिकॉज जस्ट बाय टेलिंग देम, जस्ट बाय वो नॉलेज ट्रांसफर की तो हमेशा कोशिश होती है, बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज ट्रांसफर से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उनके लिए हो जाता है वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कि उनको हाथ पकड़ के हम हमें वो कराना पड़ेगा। So this is kind of this kind of the support actually needs to be done to them, क्योंकि शायद उन तक वो नॉलेज पहुंच पाना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके का भी जो है छोटे छोटे जो भी जिन भी अथॉरिटीज को ये मौका मिलता है या जिनके अंडर में इस तरीके के काम हो, उनको एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाके जब सपोर्ट करते हैं तब वो चीजें जो है हो पाती हैं। तो देखिए बहुत बड़ा हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हम पूरे वर्ल्ड में टॉप चल रहे हैं। अब जैसा कि हमने कहा, हमने जब उनको कनेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि पीपल जो अभी लोग हैं वो खासकर पीपल आर नाउ रिलक्टेंट अबाउट गोइंग टू द ATMs विथड्रॉइंग कैश। they rather love to have the payments done through one of these UPI जो apps हैं उनका, चाहे वो फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम, Amazon पे है ना, ये सब खासकर अपनी पेमेंट्स के लिए। और फिर क्रेडिट भी मदर जो भी हमारे डिफरेंट UPI जो है उनके थ्रू हम पेमेंट्स कर रहे हैं। फोन पे डेफिनेटली जो हमारे, अगर हम इसी आर्टिकल के थ्रू देखें, फोन पे हैज बीन वाइडली यूज्ड। और इससे एक बहुत अच्छा ये होता है, जब हम कैश से लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे होते हैं तो दे कैन एक्चुअली ट्रैक देयर ट्रांजैक्शंस। मैं अगर अपने सारे पेमेंट्स जो हैं फोन पे से करता हूं या गूगल पे से, तो मुझे भी पता होता है कि मैंने अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर या हमारा जो कस्टमर है वो इसकी तरफ मोटिवेटेड है, वो अपने अगर उसने अपने पेमेंट का तरीका बदल दिया है, तो हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर, हम एक MSME है, हम SME है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पेमेंट्स रिसीव करने का तरीका बदल दें, हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस को अब यहाँ पर सामने रखें। एक और इसमें बहुत अच्छा पॉइंट था कि 47% ऑफ ऑल पेमेंट बाय customers in 2022 are estimated to be made through UPI and only 6% through mobile wallets। तो आप देखेंगे हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 47% अगर पेमेंट्स जो है आने वाले टाइम में कंप्लीटली जो है वो UPI के थ्रू होने वाला है, तो डेफिनेटली ये टाइम है जब हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। हमारे वो जो छोटे स्मॉल जो वेंडर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो नहीं अभी तक इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, कि वो इनको करें। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि पीपल आर नॉट कैरिंग कैश, तो ऐसे में कस्टमर लौट जाता है। तो वो चीजें उनके साथ ना हो, दे शुड हैव इस तरीके का उनके पास जब रहेगा, तो डेफिनेटली वो अपने कस्टमर से ज्यादा जो है अच्छे से डील कर पाएंगे। ये भी एक चार्ट जो था शेयर किया गया था, जिसमें UPI एंड डिजिटल वॉलेट्स में अराउंड 40% पेमेंट्स की थी। इसके अलावा देखिए बैंक ट्रांसफर, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, अब जो है डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के भी इनके जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी भी UPI या मोबाइल, आप इसको नॉर्मली अगर समझे तो वेरी लेमैन लैंग्वेज, हम अपने मोबाइल से बहुत इजीली जो ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं अब उसने पूरा
जो है टेक ओवर कर लिया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और बैंक ट्रांसफर जैसी चीजों को। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एसएमईस को कि एसएमईस को कि वो जो है अपने इस तरह से यूपीआई क्रिएट करके रखें। यहाँ पर ऐसा कई बार होता है, खासकर इन द स्मॉल टाउन्स, कि जो छोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं वो नॉर्मली सोचते हैं कि नहीं, मुझे कैश में ही जितना ज्यादा हो सके मैं अपने आप को टैक्स से बचा सकूंगा। बट आप हर बार दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कि मुझे टैक्स से मैं बचा रहूं। तो वो चीज जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आप ये सोचें दे शुड, इट्स द टाइम टू चेंज देयर थिंकिंग कि मैं उस टैक्स स्लैब में रैली में आ सकूं। अगर मुझे टैक्स स्लैब में आना है तो मुझे वाकई में उतनी ग्रोथ करना होगी कि मैं टैक्स स्लैब में आऊं। फिर टैक्स सेविंग के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत ऑप्शंस दिए हैं आपको, जो कि आप सेव कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स दिखा सकते हैं। तो वो चीजों का माइंडसेट भी चेंज करना होगा लोगों को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्यों डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम फोकस कर रहे हैं कि वाई दे शुड गो फॉर डिजिटल पेमेंट्स, आपको क्यों करना ही करना है। देखिए, हमारा जो मार्केट है इस समय, ये बाय नाउ पे लेटर भी एक बहुत बड़ा डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पर। कि यहाँ लोग जो है कि अभी जो हम बोलते थे कि लोग किश्तों में चीजों को खरीदना, इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई जो है, उसने बहुत बड़ा एक सेगमेंट में चेंज ला दिया है। क्योंकि हो सकता था कि इफ आई वांट टू परचेज समथिंग एंड डायरेक्टली आई एम नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैश की यार आई शुड बी परचेजिंग समथिंग ऑफ 60,000 अभी, और जब तक वो 60,000 रुपए कोई बंदा जोड़ेगा, उससे द बेटर ही फाइंड्स इट कि यार इफ ही कैन actually pay 10,000 for it and rest can be paid through EMIs। तो वो भी एक बाय नाउ पे लेटर ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस समय बड़े ही कन्वीनियंट टिकट साइज में बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस दे रही हैं। इवन जो आप अभी देखेंगे, अगर जो सबसे ज्यादा अभी इंडिया में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं एज अ फैमिली भी अगर लोग बात करें तो यू विल ऑलवेज एनकाउंटर इट। तो जो कंपनीज, अगर मैं आपको बायजूस, वेदांतु और ऐसे भी जो हमारे बड़े बड़े जो अभी अभी के यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया की कंपनीज हैं, ये लोग भी अपने कस्टमर्स को, क्योंकि आप अगर एज अ कंज्यूमर आप देखेंगे तो आपके घर में बच्चे होते हैं डेफिनेटली, और आजकल जो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के कारण पढ़ने का तरीका बदला है, तो ये सारे आप डेफिनेटली यू विल एनकाउंटर ऑल दिस। तो यू विल फाइंड कि ये कंपनीज ने भी क्या किया हुआ है, एन नंबर ऑफ बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो धीरे धीरे इट्स ऑल अबाउट अडेप्टिंग टू इट। हम पहले ये हुआ करता था कि नॉर्मली व्हेन यू द एसएमईज यूज्ड टू डू दिस कैश ट्रांजैक्शंस, तो आप खुद सोचें आपके पास इट वुड हैव बीन सो मच ऑफ रिस्क कि किसी को हम केवल टर्म्स के बेसिस पर ही दिया करते थे कि ओके आप 1 महीने बाद पे कर देना, आप 2 महीने बाद पे कर देना। बट देयर वॉज ऑलवेज अ ह्यूज रिस्क कि हमारा शायद सबसे विश्वसनीय व्यक्ति भी जो है पैसा कुछ भी करा सकता है। बट देन व्हाट अभी जो हमारे पास इस तरह से कंपनीज आए हैं, वो कहीं ना कहीं एक उनका देखते हैं कि हाँ इनका अभी क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सो दे हैव बीन गिविंग देम दिस लेवरेज कि वो एटलीस्ट आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है, दे विल बी पेइंग इट टू यू, और फिर आप जो है आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, और डेफिनेटली वो कंपनीज जो हैं वो उनसे तो कंटिन्यूसली डील कर रही हैं। तो ऐसे भी एक बहुत अच्छा, और फिर एक ऑप्शन हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी, कि वो आपसे कंटिन्यूसली जुड़े रहें। सो इट ऑल बिकम सो इम्पॉर्टेंट, और ये चीजें जो है डिजिटलाइजेशन के कारण पॉसिबल हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की वाई यू शुड मूव टू डिजिटलाइजेशन, उसका बहुत बड़ा रीजन है चीप इंटरनेट। इस समय अवेलेबल है, 4G आ चुका है, 5G की बहुत जल्दी तैयारियां चल रही हैं, और स्मूथ इंटरनेट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ने देखिए इट हैज चेंज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और लोगों को लोगों को जब ऐसा हो जाता है कि नाउ इट बिकम्स नेसेसरी टू अडॉप्ट, क्या आपको देयर इज नो अदर ऑप्शन। जब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे तो हर किसी ने अडॉप्ट किया, वो चाहे
सर्विस प्रोवाइडर हो और वो चाहे कंज्यूमर्स हो, हर किसी को अडॉप्ट करना पड़ा है। लगभग 250 बैंक्स हैं ऑल ओवर द कंट्री में जो सब यूपीआई मेंबर्स बन गए हैं। बहुत सारे यूपीआई के हमारे पास जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो एक्चुअली ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जो एरा है अब पूरा डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। जो अभी हम देखेंगे आगे की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं हैज चेंज्ड अ लॉट। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले कस्टमर को फिजिकली ढूंढना कठिन होता था, उस डेटा को रिकॉर्ड कीपिंग जो है वाज वेरी डिफिकल्ट, कि एक्चुअली कहाँ मिलेगा, वो फिजिकली ढूंढना बड़ा कठिन था। बट जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिसके बारे में हम आगे विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू, तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पर क्योंकि डेटा भी रखना आसान हो गया है, और इसीलिए जो है क्योंकि डेटा अवेलेबल है, लोगों की पसंद जो है वो चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली उसको मैनेज करना भी और एक्चुअल टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचना भी आसान हो गया है। तो इसीलिए इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट कि वी शुड एक्चुअली बी फोकसिंग ऑन इसीलिए जो है डिजिटलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैं बता रहा था, बाय नाउ पे लेटर के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। शायद अभी ये बहुत सारे लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। द एसएमईज जो हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको अब ये टाइम रहेगा कि दे विल हैव टू एक्चुअली अडॉप्ट दिस। उसमें देखिए जो हमारे फिनटेक्स हैं इंडिया के, सिंपल हो गया, जेस्ट मनी हो गया, पे यूज हो गया, लेजी पे जो है, ये सभी मोबी क्विक हैं, ये लोग बाय नाउ पे लेटर के जो ऑप्शन अभी दे रहे हैं, इसलिए जो है कंज्यूमर इनके साथ जुड़ रहा है। आपको भी इनको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा, और आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली your connectivity to the your customer becomes for a longer period of time, or you can generate more business out of it. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो जैसे हमने देखा डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई का कितना बड़ा इस समय जो है वो, हम डिजिटल पेमेंट्स अगर हम कार्ड्स और इन सब को हटा के देख रहे हैं तो वहां पर यूपीआई ने सबसे ज्यादा मार्केट कवर किया हुआ है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि उस पर शिफ्ट होने का। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि भाई इस समय जो है अगर 10% से ज्यादा जो है वो अगर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए 10% से ज्यादा जैसा कि हमने देखा था वो हमारे बाय नाउ पे लेटर पर है, ये मार्केट इतना बढ़ चुका है। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको भी अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का एक एक कल्चर है अभी भी लोगों में कि वो डायरेक्टली पूरा कैश नहीं वो करना चाहते हैं, छोटे इंस्टॉलमेंट्स पर बिलीव करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर चल रहा है उस तरीके को दे नीड टू एक्चुअली अडॉप्ट टू दिस। ये भी एक अब थोड़े से और अगर जो लोग अगर इन चीजों को समझते हैं, अगर वो इफ यू दे अंडरस्टैंड दिस, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इसमें लगेगा कि इंडिया के अभी जो 14 फिनटेक यूनिकॉर्न्स हैं उसमें से आप टॉप 8 जो देखेंगे वो सभी जो हैं वो वही हैं जो डिजिटल पेमेंट्स कहीं ना कहीं यूपीआई के थ्रू जो करा रहे हैं। और सब देखिए कि ये सब अभी जो है 2015, 2018, 16 इस तरह की फाउंडेड कंपनीज हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है इन टर्म्स ऑफ, ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। हम पेंडेमिक को अब एक दूसरे नजरिए से देखें तो एक टोटली चेंज का एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हमें लेके गया, बिकॉज इट हैज लेवल्ड एवरीवन। सो इट्स द टाइम फॉर एवरीवन, फॉर ऑल एसएमईज टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे इसके बिना अब काम नहीं चलना है। अगर इफ आई वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, मुझे अगर जिंदा रहना है मार्केट में तो मुझे डिजिटल होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एंड अथॉरिटीज नीड टू एक्चुअली गिव दैट काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग टू दीज एसएमईज कि जहां पर हमें अगर उनको बचाना है, अगर उनको वाकई में हमें मदद करना है, तो वील हैव टू एक्चुअली हेल्प देम आउट टू गेट डिजिटल। जैसे कि QCI taken such a great initiative last time when I attended this 19th
जो कॉन्क्लेव हुआ था कि जहां पर एसएमईज को जब हम बताया कि जेम हाउ दे कैन एक्चुअली रजिस्टर देम ऑन जेम पोर्टल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग योरसेल्फ टू द जेम पोर्टल्स, तो ये कितना एक बड़ा स्टेप्स हैं। ऐसे हर जगह पर कंटिन्यूसली अथॉरिटीज जो हैं ऐसे स्टेप ले रहे हैं, तो वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कराने में बहुत मदद मिलेगी। अब खासकर ये तो था एक पेमेंट साइड का था दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू कि पेमेंट्स खासकर क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्यों हमको पेमेंट्स के लिए जरूरी था कि भाई आप अपने पेमेंट्स रिसीव करने का जो मनी के ट्रांजैक्शन का मनी विच इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, तो वो ब्लड के फ्लो को आप रेगुलेट डिजिटलाइजेशन में बहुत प्रॉपरली कर पाएंगे। और ये फैक्ट्स हैं बिल्कुल सामने जो बता रहे हैं कि अगर आप इस चीज को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है लूजिंग साइड में आ जाएंगे। अब जो है इसके बाद डिजिटल प्रेजेंस क्या है, डिजिटल प्रेजेंस क्यों जरूरी है, वो क्या सबके लिए एक जैसा डिजिटल प्रेजेंस है? क्योंकि नॉर्मली व्हाट एसएमईज जो हैं वो डिजिटल प्रेजेंस से यही सोचते हैं कि यार वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, दीज आर द टू थिंग्स जिनको आजकल सबसे ज्यादा विच है जो मिसकंसेप्शन में आ रहा है। और ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा ये थोड़ा सा एक लोगों को भ्रमित भी किया जाता है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है, तो इसलिए शायद ऐसा किया जाता है। बट इससे भी ऊपर है योर डिजिटल प्रेजेंस, किसको क्या डिजिटल प्रेजेंस की जरूरत है, बट प्रेजेंस की सभी को जरूरत है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो वो किस तरीके से है, विल बी नाउ डिस्कसिंग दैट। So definitely the COVID pandemic has accelerated the growth of digital technology adoption. Many SME owners feel that they can relate to digital marketing much more than to the other digital technologies. और खासकर B2B हो सेगमेंट हो चाहे B2C सेगमेंट, they have integrated some of the other digitalization into their sales। अब देखिए चार बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके कारण यहाँ पर जो है हमें एसएमईज को अब डिजिटल में नेविगेट करना है। क्यों? पहली चीज है द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रांड बिल्डिंग, then we'll discuss about lead generation, then the sales force management and the sales support। ये वो चार पिलर्स हैं जो कहीं ना कहीं पे आपकी प्रेजेंस को बता रहे होते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इन चारों में जो है आपको हम वन बाय वन नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि कहां पर आपको डिजिटलाइजेशन मदद कर रहा है एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हमें पता रहना चाहिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांड बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली होता ये है कि जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आ जाती है तो एसएमईज को ब्रांड बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस कर दिया जाता है कि भाई हम आपके लिए जो है हम आपका एक ब्रांड क्रिएट करेंगे मार्केट में। अब होता ये है कि दिस इज समथिंग दे नीड टू रिमेम्बर कि डिजिटल प्रेजेंस से नॉर्मली जो डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसीज रहती हैं व्हाट they do is कि they play with the numbers। they'll say कि we have actually promote through Google ads and हम different तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके हमने फेसबुक एड्स चला दिए आपके, हमने आपके इंस्टाग्राम एड चला दिए, हमने लिंक्डइन पर आपके एडवर्टाइजमेंट्स दे दिए हैं, आप 1 लाख लोगों तक आपकी रीच पहुंच गई है। तो डेफिनेटली आपका ब्रांड 1 लाख लोगों तक तो पहुंच रहा है, बट हमें ये होना बहुत जरूरी होता है एक एज एन एक एसएमई ओनर को कि मुझे पहुंच तो रहा हूं मैं 1 लाख लोगों तक, बट वेदर आई हैव बीन एबल टू रीच टू माई टारगेट क्राउड और नॉट। मैं जो पैसा दे रहा हूं, बिकॉज इसमें बहुत पैसा जो है नॉर्मली लोगों से पैसा लगवा दिया जाता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यार वेदर दे हैव बीन एबल टू रीच टू द राइट पीपल और नॉट। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब चीजों का, वेदर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ, अगर आप देखते हैं, हेलो, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. हाँ वो कुछ इशू था, Hello? Yes, sir, you are audible. होल्ड पे चली गई थी, तो अब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ जी।
Am I audible now? You're audible, but your voice is तो आप echoing. विदाउट ग्राउंड वाटर मॉडलिंग के लिए अप्लाई करेंगे और वही विद मॉडलिंग करेंगे तो आप जो Can you hear me, sir? हाइड्रोजोलॉजिस्ट है उसको भी Yeah, Sir, your actually, mic is on mute. I'll just connect to the. I'll just check. There's some problem with the laptop. There is some echo at your end. Yeah. I'll just check. Sir, please unmute with the other device, मैं आपको ना शेयर कर देती हूँ like a laptop. ईमेल आईडी इस नंबर पे Yeah. I'm unmuted. Sir, now I can hear Hello? you. Okay. Yes, sir. It's now you can. I'm just resharing the screen. I think there's some problem. Sir, we can see your screen, sir. Okay, you are resharing. Okay, sir. Yeah, I'm just resharing it. Okay. Is my screen visible now? Not now, sir. I hope it's visible now. No, sir, it's not visible. Just Ashish, am I audible? You are audible, sir. Sir, your screen is not visible. Should I share this key? हेलो हाँ जी Sir, are you there? बात कर लो आप
आप कहीं डोर पे लगी हुई बात कर लो, मैं तो ऑफिस में, मुझे नहीं पता। Sir, can you hear me? Your mic is on mute, sir. आपस में बात कर लो, मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस में हूँ, Hello? आपस में बात कर लो। Ashish, can you hear me now? Yes, sir, I can hear you. Sir, I request you to please unshare your screen, sir. I'm going to share my screen. Like, Okay. I'll present the I'm presentation. doing it. Okay. You share the screen, please. Thank you. Sir, please tell me the which slide number I need to show. Like, Actually, just need. I think actually I didn't number the slides, but actually I'm on the lead generation one. Just okay, after this brand building one. this one. Yeah. Okay. 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 Thank you. So we were actually discussing on. Okay. So voice is getting. Okay. Now am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So we were actually talking about, the lead generation part. So particularly for lead generation, the SMEs need to understand how they can actually reach to their target customer. And the most important thing is whether this platform that has been mentioned, or whether a designated platform, or the way they are actually digitally approaching their customer, it is relevant or not, whether they are really going to find out their uh, customer, their target audience on that or not, that is something more important. अब होता ये है कि कई बार जो है, जैसे कि अभी we'll see फेसबुक इज स्टिल लीडिंग इन टर्म्स ऑफ जो लीड जनरेशन का काम है, आज भी फेसबुक सबसे ज्यादा कर पा रहा है। इंस्टाग्राम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑडियंस एंगेजमेंट, जो अगर हम देखेंगे बहुत सारे हमको ऐसे आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे जहां पर पता चलेगा कि सबसे ज्यादा यूथ का जो इस समय एंगेजमेंट है वो थोड़ा इंस्टाग्राम पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे जैसे कि वो फेसबुक है, तो उसके कंपैरिजन में। और एक बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस, जो एक बहुत ही एक जो बोलते हैं एक लर्नेड, शायद अगर मैं कहूँ तो इट वुड बी अ बेटर वर्ड, जो लिंक्डइन को यूज कर रहा है, जो खासकर B2B ज्यादा है वो कर रहा है, या B2C भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बट B2B थोड़ा सा ज्यादा करता है, जहां पर लोग समझदार हैं उस तरीके के, वो लिंक्डइन जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअली टारगेट जो कस्टमर है वो मुझे कहाँ मिलने वाला है। अगर मैं एक SME हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे मेरा टारगेटेड कस्टमर एक्चुअली जो है वो अगर एक ऐसा ऑडियंस है जो फेसबुक ज्यादा चलाता है, जिसके प्रेजेंस जो है वो फेसबुक पर ज्यादा है, तो मैं फेसबुक को यूज करूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्विटर के थ्रू जो है ज्यादा लोगों तक रीच हो सकती है मेरी, तो मुझे फिर अपनी लीड्स के लिए वहां पर जाना होगा। और हमारे पास एन नंबर ऑफ जो है जब हम इसमें जाते हैं तो हमें सभी प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जो एक्चुअली हेल्प आउट करते हैं कि क्या वाकई में हमें वहां से लीड्स जनरेट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, बिकॉज दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर सर्चेस के थ्रू कि भाई वो व्यक्ति क्या सर्च कर रहा था, किस बारे में सोच रहा था। ये सारी चीजें जो हैं वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली एक कंप्लीट पैकेज के जैसे और एक कंप्लीट एनालिटिक टूल्स के जैसे, जो इनके खुद के एनालिटिकल टूल्स हैं उसके थ्रू लगते हैं हमेशा कि भाई किस तरीके, आपको किस ऑडियंस की जरूरत है, आपको किस क्राउड की जरूरत है जिस पर आप अपना जो है एक्चुअली आप यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट एंड यू कैन जनरेट लीड्स आउट ऑफ देम। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी होती हैं। और हर तरीके के, अभी एक आई गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए केस स्टडी कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप है विच वाज एक्चुअली इनटू उनका नाम CS टेस्ट सीरीज है।
तो they were actually, they used to provide, you know, complete solutions for students preparing for CACS examinations. So, and they are one of their kind in this segment. और जो पूरा, क्योंकि स्टूडेंट्स कैटेगरी में शायद इस पर बहुत ज्यादा पहले फोकस नहीं किया जा रहा था, they become, you know, in a very small span of time, being from a tier 2 city, they become एक ऐसा स्टार्टअप बन गया जो नियरली 1.2 CR का रेवेन्यू जो है जनरेट कर पा रहा है साल भर में। तो वो चीजें जो है कि अगर उनको 10 लाख रुपए पर मंथ का जो वो रेवेन्यू निकाल रहे थे, when they actually unfolded their strategy on, you know, कि how they used to generate lead, तो उन्होंने बताया कि वो फेसबुक पर जब अपने शेयर करते थे, अपने फ्लायर्स शेयर करते थे, इंफॉर्मेशन शेयर करते थे कि वी आर एक्चुअली, यू नो, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, जहां पर आपको आंसर्स राइटिंग और इस सब का हम हेल्प आउट करेंगे। तो पीपल यूज टू, जो इंटरेस्ट शो करते थे उसमें, वो इंटरेस्टेड लोगों को वो जाते थे, उनको कॉल करते थे एंड वहां से वो उनको कन्वर्ट करते थे लीड्स में। एंड वो उसका हमेशा ट्रैक रखते थे कि जितने लोगों ने उनको शो किया हुआ है, अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज अ नेगेटिव कमेंट ऑल्सो, तो उनको भी वो दे यूज टू एक्चुअली, यू नो, वो सबको कंसीडर करते रहते थे। एंड दैट्स वेयर दे हैव बीन एबल टू जनरेट लीड्स। ऐसे ही गूगल एड्स के थ्रू भी काफी जो है लोग जनरेट कर रहे हैं। लिंक्डइन पर एक अच्छा, एक हेल्दी कम्युनिटी जब लोगों का पूरा बना हुआ होता है कि जहां पर पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू से और जहां पर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वहां से भी इस समय एक अच्छा खासा जो है लीड जनरेशन के ये प्लेटफॉर्म्स के फॉर्म में सामने आए हैं। तो बट ये होता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक्चुअली एसएमईज जो हैं उनको खुद समझना होगा कि क्या सिर्फ यही प्लेटफॉर्म्स हैं या इसके अलावा भी हमें हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कस्टमर सिर्फ आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जा रहा हो। आई जस्ट नेम, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पहले ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे थे इसके जस्ट पहले, तो वो चीजें जो हैं, अगर आप अपना ब्रांड बिल्डिंग पे देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का रीच आज इतना ज्यादा है कि ऑफलाइन मार्केटिंग से, और ये सस्ता भी है, ये लो कॉस्ट है, इसीलिए इस पर जो है लोग ज्यादा करना चाहते हैं। लोगों का एंगेजमेंट जो है सोशल मीडिया पर ज्यादा है, इसीलिए वहां पर हमें ज्यादा अच्छे से कस्टमर मिल सकता है। तो अब ये समझना होगा कि somebody फॉर अ किराना शॉप और कोई ऐसी शॉप है जहां पर रेगुलरली कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, तो इफ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग जस्ट ऑन कि वो 1-2 किलोमीटर तक के दायरे के लोगों को ही अगर अपने सर्विसेज केटर कर रहे हैं, तो उनको भी डिजिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोगों को जब उनसे मिलते हैं, उनसे उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जोड़ते हैं, तो अपने किसी भी तरीके के लोग खुद भी अगर कुछ ऑफर्स मिले हैं जो वो ऑफर्स फ्लोट कर सकते हैं, दे कैन फ्लोट इट। और जो उनका टारगेटेड कस्टमर है वो वहां पर है, अगर 100 लोग देखेंगे तो 2 से 5 लोग डेफिनेटली उसके लिए तैयार होंगे अगर उनके इंटरेस्ट की चीज है। तो इस तरह से ये हो जाता है लोकल लोगों के लिए। और इसके अलावा फेसबुक पर भी लोग कंटिन्यूसली शेयर करते हैं अपने आर्टिकल्स को, वो भी एक बहुत अच्छा है। तो दिस इज ऑल कि उनको रिकॉग्नाइज करना होगा और उसको बढ़ते रहना होगा। वी कैन स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आशीष। हाँ, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट अ लॉट। अभी डिजिटलाइजेशन जो है वो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में भी बहुत मदद कर रहा है। अगर आप लीड स्क्वाड जैसे जो हमारे क्या है, कस्टमर्स को जो कोल्ड कॉलिंग्स और टारगेटेड जो हम कॉलिंग्स करते हैं, उसके लिए जो लीड स्क्वाड जैसे डिजिटल मैं जो बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जो टू कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी हैव एक्चुअली टॉक। अगर एक कस्टमर है उसको हम 10 बार, 12 बार, 50 बार अगर उसको हिट कर रहे हैं और हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं ये हमारा कस्टमर हो सकता है, तो डेफिनेटली जब उसका एक, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, एक डेटा नहीं होगा, तो हम उसको उस डेटा के बेसिस पर ही कोई डिसीजन ले पाएंगे कि भाई इसको हमें नेक्स्ट टच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो पूरा सेल्स फोर्स है, बिकॉज सी वंस यू हैव कम अप विथ अ प्रोडक्ट, आप अगर ऑलरेडी एक अच्छे प्रोडक्ट बना चुके हैं
के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स ही हो जाता है। तो वो सेल्स में कंटिन्यूअसली कस्टमर तक पहुंचना और उसका रिकॉर्ड रखना और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना, ये सब जो है वो जब डिजिटलाइज्ड वे में होता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। लोग जो हैं CRM सॉफ्टवेयर्स हैं वो बना के अपने कस्टमर्स का, तो एटलीस्ट आप जो भी खर्च कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक बहुत एक्सपेंसिव मोड पे जाना है एक SME को, लेकिन कम से कम उसको एक मिनिमम तो कुछ अमाउंट अब उसको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ डेफिनेटली मूव करना होगा कहीं ना कहीं। जैसे उसमें लोग पहले जो होता था, हम बाय फेस कस्टमर्स को लोग याद रखते थे कि यार दिस इज पर्टिकुलर कस्टमर, अब इनसे हमारा एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बन चुका है। तो अब उसकी जगह पर जो है चीज़ों ने डिजिटल फॉर्मेट ने ज़्यादा अब जो है एक टेक ओवर कर लिया है चीज़ों को, तो डेफिनेटली उसको रखना पड़ेगा। और जब इस तरह से मूव करेंगे तभी हम आगे जो है इसमें एक अच्छा अपने लिए फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकेंगे। देखिए एक एग्जांपल इसमें कि प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर इज गिवन एन ऐप टू बोथ कंज्यूमर्स और सेल्स पर्सन टू कीप ट्रैक ऑफ देयर मीटिंग्स थ्रू GPS। कि भाई अभी एक जो प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर दे हैव एक्चुअली गिवन एक नॉर्मली इस तरीके के एप्स जो हैं वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज वाले भी बनाते हैं, जहां पर एक्चुअली व्हेन दे आर पिचिंग इनटू द मार्केट। ये रिसेंटली वन ऑफ द स्टार्टअप फ्रॉम Madhya Pradesh actually did it, who was totally into go to market strategy। तो वो फर्स्ट टाइम क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो जब हम पिच कर रहे हैं कस्टमर्स के सामने पहली बार, किस तरह से मार्केट में उतरना है, और खासकर की कस्टमर्स की जो है हमारे को चेक करने के लिए कि वेदर वैलिडेट भी करना है प्रोडक्ट को कि यार वाकई में लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दे एक्चुअली कम अप विथ अ प्लेटफॉर्म जिसको अभी वो बना रहे हैं कि जहाँ पे एक्चुअली उससे दोनों का ही GPS के थ्रू लोकेशंस ट्रैक करी जा सकेंगी। लोगों को यूज कराया उन्होंने और तुरंत वहां से उसका रिजल्ट जो है वो अपने में ट्रैक ट्रेस किया कि हाँ ये जो है ये पर्टिकुलर ने ये रिजल्ट दिया हुआ है। तो ऐसे जब when you have that much of data तो definitely it will help us out to understand कि what should be the next step. We can move to the next slide. Ashish ji, we can move to the next slide. Hello. Definitely, and this is the next and the most important pillar. It's the sales support. देखिए sales जो service after sales है अब वो बहुत important हो गया है। This is something you need to understand कि अगर सर्विस अच्छी नहीं आप दे रहे होंगे तो डेफिनेटली यू लूज योर कस्टमर्स, क्योंकि अब जो नेट थ्रॉटलिंग कंपटीशन इस समय चल रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अभी जो है देयर आर एन नंबर ऑफ एग्री टेक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स who have actually started कि वो अपने जो अगर वो उन्हें कोई पेस्टिसाइड्स वहां पर सेल आउट करना है तो उन्होंने अब जो एंड जो फार्मर्स हैं, क्योंकि आजकल हमने कहा कि एटलीस्ट एवरीबडी इज हैविंग दिस द डिजिटल फोन्स, these एंड्रॉयड फोन्स हैव बिकम सो कॉमन कि वहां पर एटलीस्ट ये चीजें अवेलेबल हैं और दैट हैज हेल्प टू गेट एक्चुअली कनेक्टेड टू देम। तो हर एक के लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई किस तरीके का जो है वड़ल अभी अगर किसी तरीके का फंगस या कुछ भी उनकी क्रॉप्स में लग रहा है, एंड दे कैन सजेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, दे कैन सजेस्ट देम कि यार आपको यू शुड एक्चुअली हैव दिस काइंड ऑफ जो ये पेस्टिसाइड है आप इसको परचेज कीजिए, हम आपको ये पेस्टिसाइड यहाँ पर कराएंगे। तो जब उतने इंटीरियर लेवल पे जब हम अगर बात कर रहे हैं वहां तक लोगों को पहुंचने में ये सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स द नीड ऑफ द आवर फॉर एवरीवन टू एक्चुअली गेट इनटू डिजिटल वर्ल्ड। और जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट जो जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको यूटिलाइज करना शुरू करें और इससे जो है वो अपने आप को पीछे ना रखें। अब ये कोशिश ना करें क्योंकि यू विल हैव टू अडॉप्ट इट, देयर इज नो अदर पॉइंट। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Ashish ji, we can move to the next slide.
डेफिनेटली ये दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड कि जो कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये CMS आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप खासकर कि इसी अब क्या है, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आ गया है कि नॉट ऑल हर एक चीज के लिए अलग मोबाइल ऐप नहीं हो सकता। जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं हमको उस पर ही कोशिश करें, क्योंकि लोग हर चीज के लिए एक अलग ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली जिस जिस आपके बिजनेस को अगर वो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल करी जा सकती है, अगर उसको हमें अलग से, इफ इट डजंट रिक्वायर्स ए मोबाइल एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन, तो क्या किसी एग्जिस्टिंग चीज के थ्रू ही हम उसको कर सकते हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ इट। ये डिजिटल प्रेजेंस आपको बनाना होगा, वो चाहे आप देखिए फॉर SMEs, आप until and unless people will know about your product, how they are going to reach you। और डिजिटल प्रेजेंस इस समय इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको एक बना बनाया जहां कम्युनिटी मिल जाता है, यू कैन शेयर योर थिंग्स टू द पीपल वेयर यू कैन एक्चुअली जनरेट लीड्स आउट ऑफ इट। तो वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कस्टमर आपका जो है अब इस समय सोशल मीडिया पर बहुत अवेलेबल है, तो वहां पर ही आपको टारगेट करना होगा। और सबसे अच्छी चीज ये है, पहले जो बैनर, फ्लैक्स, पैम्पलेट्स जो आज कन्वेंशनल चलता था पहले तक, तो वो कन्वेंशनल चीजें जो हैं उससे ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं और ज्यादा टारगेटेड सॉल्यूशंस हैं। इसीलिए इनका जो है यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है और डेफिनेटली इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्लीज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेटली ये सब कुछ पॉजिटिव पैंडेमिक का हम इसको वी कैन टेक इट, कॉल इट एज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक, क्योंकि इट हैज फोर्स्ड अस टू डू इट। I think Ashish ji, actually we can move to the next slide because I'll be skipping few slides now. बस दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या फियर्स हो सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। आयरॉनिकली जैसे हम बोलते हैं कि सोशल चेन, लोग कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट गोइंग डिजिटल, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि मेरा कस्टमर मुझे कहाँ मिलेगा। अगर मेरा कस्टमर, अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसका अगर मेरा वेबसाइट है और मेरा कहीं डिजिटल प्रेजेंस है, पीपल कैन सर्च मी to then we can have a website। अगर मुझे लगता है कि रेगुलर कस्टमर एंगेजमेंट है तो मैं मोबाइल ऐप के लिए जाऊं। अगर मुझे लगता है कि नए कस्टमर, मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचता हूं जो लोग शायद एक बार खरीदेंगे फिर उसके बाद मुझे दूसरा कस्टमर मिलना चाहिए, तो उन चीजों के लिए भी मुझे मेरा डिजिटल प्रेजेंस होना जरूरी है इन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मुझे ये बस समझना होगा कि कहाँ पर एक्चुअली मेरा कस्टमर मिल सकता है, वहां से मैं जो है वी कैन रीच आउट टू देम। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, गो बिग और गो होम, ये बहुत अच्छा, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन एक फाइंडिंग्स रहा है कि इधर नीड टू अंडरस्टैंड, या तो आपको चीजों को अडॉप्ट करना होगा और आप चाहो तो इट कैन रियली हेल्प यू आउट टू रियली गो बिग। आप वाकई में एक बड़ा बना पाओगे अपने आप को, और अदरवाइज यू विल पेरिश। तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, कि हमने जो बिल्कुल शुरू में भी बात की थी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आपको जो है कहीं ना कहीं माइक्रो से हमें स्मॉल और फिर स्मॉल से मीडियम का जो ट्रांजिशन है खुद अपने लिए तय करना होगा। और अगर हमारा वाकई में परमिट करता है वो बिजनेस उस तरीके का, तो जब तक हम डिजिटलाइजेशन का मदद लेंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू डू। कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आशीष जी। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। डेफिनेटली इट्स ऑलवेज आपके लिए ऐसा जरूरी नहीं, इट्स ऑलवेज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिग चंक्स ऑफ मनी ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ऑन डिजिटल टूल्स। मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी कहा कि अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड व्हाट्सएप पे ही मेरा कस्टमर मिल जाता है तो वी शुड फर्स्ट ट्राई आउट टू दैट, फिर हम कहीं और इन्वेस्ट करने की सोचें। अगर मेरा कंज्यूमर जो है मुझे फेसबुक के थ्रू मिल जाता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स अगर फ्री हैं उसके थ्रू मार्केटिंग से अगर मुझे मिल जाता है, या एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जो है पुट करके फेसबुक एड्स में या इंस्टाग्राम एड्स में या गूगल एड्स में अगर मुझे वो पैसा डाल करके मुझे मेरा कस्टमर मिल जा रहा है,
तो मुझे ये नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए वो मार्केटिंग का जो है वो वहाँ पे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, कम पैसे में ज्यादा लोगों की रीच हमें यहाँ पर ही मिल सकती है और कंटिन्यूअसली लोग आपसे जुड़े रह सकते हैं। तो उस पे इन्वेस्ट करना है पहले। वी हैव टू इन्वेस्ट स्मॉल, बट डेफिनेटली हमारे टारगेट्स बड़े होने चाहिए, और जैसे ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो देन यू विल हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली इन्वेस्ट मोर ऑन इट, और जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उससे 10 और 100x का जो है हम उससे वापस निकाल सकते हैं। यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो आशीष जी, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसमें अभी वी हैव बीन एक्चुअली स्टार्टअप्स भी काफी ऐसे आ रहे हैं जो अब एमएसएमईज को, एसएमईज को मदद कर रहे हैं हर तरीके से कि जो है उनको, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सेक्टर जब हमारे पास ये अवेलेबल है और 30% इज अ ह्यूज अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन डन बाय द एमएसएमईज, तो इस पर भी टारगेट करके उनको सर्विस देने का काम कर रहे हैं। और जो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कैसे उनको यूटिलाइज कराना है टूल्स को, तो उसके लिए राइट सजेशंस के लिए भी स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। एंड ऑल वी नीड टू डू इज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक हैंड होल्डिंग जरूरी है, एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। ये सोच के एवरीवन विल हैव टू मूव कि एक दूसरे के फायदे से ही हमें भी फायदा होगा। तो दैट इज द ओनली वे टू गो। आप चाहें तो जो एग्जिस्टिंग एसएमईज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन कर सकते हैं इन चीज़ों में, और डेफिनेटली दे विल फाइंड आउट कि उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनको निकल के आते हैं। क्योंकि एक डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए होता है कई बार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। जैसे अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर कंटिन्यूसली अगर आपको लीड्स वहाँ से जनरेट करना है तो कंटिन्यूसली आपको उनको मैसेज करने, उनसे बात करने के लिए देयर शुड बी समबडी हु इज अवेलेबल। ऐसा ही फेसबुक्स पर है, और आप मैसेंजर पर भी अगर आपका कस्टमर आपको रीच आउट कर रहा है तो आपको उनसे कनेक्टेड रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो इधर यू शुड बी गिविंग इट अ डेडिकेटेड फॉर्म, और इस तरह से ही आपको मूव करना है। तो उन चीज़ों के लिए आप किसी को डेडिकेट कर सकते हैं और वो डेफिनेटली उसको आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आशीष जी, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है आपको कि इट्स स्टिल नॉट दैट इजी फॉर यू, बट आपको ये समझना होगा कि इसका परफॉर्मेंस और आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि जो सपोर्टिंग अथॉरिटीज हैं उनको इंश्योर कराना होगा, क्योंकि दिस चेंज इज गोना हैपन, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज चीजें लेकर के आ रही हैं। तो वो जो उनका वट एवर दे आर इन्वेस्टिंग उसका आरओआई जरूर उनको सामने दिखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जस्ट ब्रांड बिल्डिंग अगर इम्पॉर्टेंट है तो उतना ही टारगेट कस्टमर तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। तो जो अथॉरिटीज अपने आप को जो उन्हें हेल्प आउट कर रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इनकी सर्विसेज लेने के लिए, उनको कहीं ना कहीं ये इंश्योर कराना होगा कि हाँ ये डेफिनेटली जो है हमको एक फ्रूटफुल रहा है। यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, thank you everyone. This is all from my side. जो भी बेस्ट पॉसिबल था इन टर्म्स ऑफ हमारे स्टैट्स हैं और जो हम प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, जो टूल्स हैं उसको नेविगेट में आप कैसे वी कैन ऑल यूज। तो आई थिंक सो कि आप इन चीज़ों को मैं आप तक बेहतर पहुंचाने में मैंने जो कोशिश करी, आई बीन एबल टू डू इट। थैंक यू सो मच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, हिमानी जी, Pooja ji, Ashish, for continuous support. Thank you, sir. There are few questions. Yeah, please. Navneet Sule, actually he has quite few questions. So let me read please. out the first one. Yeah. What is financial support for digitization to MSME? What is the financial support to? Digitization to MSME. For digitization to MSME. See, अब अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आप जो उनका एग्जिस्टिंग भी जो हमारा अगर फाइनेंशियल सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, आप वहां से भी जो है आप मदद ले सकते हैं।
और अदरवाइज जो मार्केटिंग, ये इट ऑल काउंटर्स अंडर द मार्केटिंग सपोर्ट। तो आप मार्केटिंग सपोर्ट के फॉर्म में ही उस पैसे को यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन एक्चुअली इस चीज को जब हम दिखाने जा रहे होते हैं उनको कि हमने वी हैव एक्चुअली यूटिलाइज दिस मनी, तो वो चाहे आपने किसी एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया हुआ है, वो चाहे आपने कुछ अपना प्रोडक्ट बनवाने में खर्च किया हुआ है, तो ऑल दैट यू कैन शो इट टू द अथॉरिटीज। और डेफिनेटली जो एन नंबर ऑफ स्कीम्स हैं जो जहां आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो सभी जो है वो आपको आप इसमें उसका भी जो मनी है वो आप डेफिनेटली यू कैन यूज इट फॉर द अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अदर सपोर्ट की देखें तो यू ऑलरेडी हैव जैम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, आप उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है डिजिटलाइजेशन के लिए, खासकर डिजिटल मार्केटिंग आपको एक प्रेजेंस देने के लिए आपको रियली हेल्प आउट करेंगे। His next question is, any concessions or tie-ups from digital agencies to MSMEs? सी एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि इसको इंस्टेड ऑफ गोइंग वेरी स्पेसिफिक, ये हर तरीके के आपको, क्योंकि ये आपका स्टेट वाइज हो सकता है, सेंट्रल भी जो है वहां से आपको एन नंबर ऑफ जो प्राइवेट अथॉरिटीज तो खासकर इसमें काफी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम अब हमारे स्टार्टअप्स के लिए बात करते तो जो अमेजॉन वेब सर्विस क्रेडिट्स हैं, और जो यहाँ पर मैसेज 91 इज ऑल्सो गिविंग लैक्स ऑफ मैसेजेस फ्री टू द स्टार्टअप्स। तो वो इस तरीके के काफी सपोर्ट जो है वो अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली दे हैव टू रीच इट आउट, और उस पर जो है वो डेफिनेटली उसको केटर कर सकते हैं। Any common digital platform developed to connect all MSME to its customer? सी व्हाट आई सी, जेम को डेफिनेटली हम देखते हैं कि दैट इज डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ने एक अपना फर्स्ट उस पे तो बनाया हुआ है, जहां पर वो दे कैन सेल इट आउट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इसके अलावा व्हाट पर्सनली वी सी इज कि मुझे ऐसा लगता है कि एसएमईज और एमएसएमईज को ज्यादा जो एक दूसरे के लिए करने को, अगर उन्हें वाकई में जो उनका टारगेट कस्टमर्स हैं वो उनको प्राइवेट सेक्टर्स पे भी जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए इट हैज टू बी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा जो हमारे आर्टिशंस और जो पीजेंट्स हैं वो इस तरीके का अगर जब कुछ बनाते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, उनको कनेक्ट करने के लिए भी एन नंबर ऑफ अथॉरिटीज ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर जेम अकेले को अगर छोड़े तो फिर प्राइवेट सेक्टर ने भी आजीविका नाम से कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों पर भी उनको कनेक्ट किया जा सकता है, एंड डेफिनेटली दे कैन वहां से वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं अपना। His next question is, WhatsApp is not considered currently authentic or secured social platform to be used for business purpose. Any secured government recognized developed platform? सी एक्चुअली व्हाट्सएप को डेफिनेटली नहीं, अगर आप इफ यू थिंक दैट इट्स डेफिनेटली उसको उतना सिक्योर नहीं है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ, मैं पेमेंट्स के लिए नहीं बात करूं, बट होता ये है कि वी ऑल्सो हैव टू सी वेयर द मैक्सिमम क्राउड इज प्रेजेंट। अगर मैक्सिमम क्राउड जो है वो व्हाट्सएप पर प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग द व्हाट्सएप, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं एक वहां पर कम्युनिटीज डेवलप करके लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसके थ्रू जो है दे हैव बीन एबल टू रीच आउट टू द कस्टमर्स, तो वो डेफिनेटली उस पर ही किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर वो देखें तो टेलीग्राम्स वगैरह पर भी ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, टेलीग्राम्स पर भी लोग बना सकते हैं, तो वहां पर भी ये चीजें करी जा सकती हैं। तो हमें दे हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट कि वाकई में आप अगर डायरेक्टली वहां से मनी का ट्रांजैक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो दे कैन एक्चुअली डू इट ऑन ट्रांजैक्शंस के लिए आप अलग से कर सकते हैं, हाँ, बट लीड जनरेशन जो है वहां से किया जा सकता है। Any hand holding to implement digital platforms? हैंड होल्डिंग देखिए अब एज सच तो मतलब स्पेसिफिकली तो नहीं है, बट देखिए अभी इतना सा जो गवर्नमेंट ने अभी किया हुआ है, जैसे अलग अलग जगहों पर डिजिटली कनेक्ट करने के लिए जो है यूपीआई क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा जो लोकल अथॉरिटीज भी हैं वो लाइक इन आर स्टेट ऑल्सो वी हैव बीन डूइंग मध्य प्रदेश में, कि जहां पर लोकल जैसे कि हमने कहा कि बीइंग एज अ स्मार्ट सिटी हमने जो अभी करा था कि हमने जो अथॉरिटीज को है
वहां से हमने जो लोकल इस तरीके के जो सेलर्स हैं और इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको हैंड होल्डिंग के फॉर्म में खुद ही उनके यूपीआई जनरेट कराए। द नगर निगम इज आल्सो डूइंग इट। तो ऐसी लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज भी कंटिन्यूअसली कर रही हैं कि उनको हम यूपीआईज और ये सब क्रिएट करा सके। हाँ, स्पेसिफिकली फॉर वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस वो सच नहीं है। कुछ गवर्नमेंट बॉडीज अपने जो है जेम जैसे दूसरे पोर्टल्स को जरूर create कर रहे हैं। Even we are also looking forward to one such kind of a portal where we'll be actually registering जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो वेरी स्मॉल स्केल आर्टिसंस हैं और वो सबको, where we can actually help them out और उनके प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली उसके थ्रू सेल आउट करेंगे। That's it with the questions, sir. Thank you, sir, for such an enriching session. Thank you to all the participants for their active participation in this session. May I now request the audience to enable their cameras for the group photograph? Please. Ashish, have you enabled them? Yes, ma'am. Participants can enable their webcam. Yeah. Okay. And this picture is not for sharing purpose, it is for our record purpose. Okay. Because few queries we get, share the pictures with us. We won't be sharing these pictures with anyone. This is for our own record purpose. Ashish, people are not able to switch on their camera. I have given them access from my end. Okay, thank you everyone. Pooja, if I can just leave now because I have a meeting scheduled. So we can just. Agranshu, wait a minute, only for a minute. Okay. Ashish, can you see all the cameras open? No, ma'am, I cannot see anyone. Agranshu, can you switch on your camera, please? Yeah, my camera is already switched on. I'm unable to see you as well. Sorry. No, mine is already switched on and I can see Ashish, are you able to see everyone? Agranshu No, also? ma'am. No, ma'am. I can see you and Himali. Himali, na? Himali, are you able to see? Yes. No, ma'am. Yeah, Agranshu, sir? I have actually, No, I have I turned cannot. on my camera and but I have already turned it on. Nobody is able to switch on their camera, Ashish. Ma'am, I have given them access. I don't know why they are not getting like the. Let me check. Okay, no worries, Himali. You may continue with your vote of thanks now. So thank you, everyone. And also we will be sending a feedback form to all the participants. You are requested to provide us with your feedback as it plays an important role in our constant development. Once again, I would like to thank Mr. Agranshu Dwivedi, sir, for making this webinar a success, and thank you to all the participants as well. I would also like to thank the QCI and the QP team for organizing this webinar. Thank you very much, and everyone have a lovely day ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.
Thank you.